ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤਹਿ ਤਨ ਸੋਹਿਆ, ਸੁਰਜਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਕਵਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਰਹਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਆਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾਵਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰਗ। ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਾਂ? ਇਹ ਲਬ, ਇਹ ਲੋਭ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। बहुत मुश्किल मार्ग है, तलवार की धार जितना संकरा, पतला सूक्ष्म। लेकिन यही मार्ग भगतां ने अपने अंदरों ही पहचान लिया है। अपना आपा गुरु चरना विच न्यौछावर कर दिता है। जीवतियां यूं मरिए अते अपना नवा जीवन पा लिया है। गुर प्रसादी जिन्हें आप तजिया, हर वासना समाणी। कहे नानक चाल भगता, जुगो जुग निराली। जुगा जुगा तो ये भगतां दी चाल निराली है। अपने आप विच एक ही, कौन पछाने इसनू, कौन जाने इसनू। जो खुद भगती दे मार्ग ते तुर पे। किस तरह तुरिए? गुरु नानक आए, आपने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोवें ही रब नू पाना चाहते हैं, पर एक दूसरे दे जाने दुश्मन बन गए हैं। धर्म दे नां ते अधर्म कमा रहे हैं। आप जी ने आख्या, जो मुसलमान है वो चंगा मुसलमान बनो, जो हिंदू है वो चंगा हिंदू बन जाओ। तू भी चंगा है, तेरे विच भी कोई कमी नहीं। ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे।
ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁम्हार है, उसने बनाया है। कुम्हार जो बनाने वाला प्रभु है, उस ਵਿੱਚ कोई पोच नहीं, कोई कमी नहीं। और प्रभु कोई कमी वाला पांडा किस तरह साज सकता है? जो उसने साजिया है उस ਵਿੱਚ भी कोई कमी नहीं। तू इंसान चंगा बन जा। तू चंगा मुसलमान ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ। तू चंगा हिंदू ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ जद मनुखता तेरे अंदरों झलकेगी। चंगा मनुख बन जा, यही तेरा रास्ता है। हिंदू ते मुसलमान इकट्ठे हो गए। हुण गुरु साहब आखन लगे, लेकिन जो भगत है उसकी चाल निराली है। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत। नामे सोई सेव्या, जय देहुरा ना मसीत। हिंदू मंदिर ਨੂੰ पूजता है, वो मस्जिद ਨੂੰ। लेकिन भगत उस ਨੂੰ पूजदा है जो ना मंदिर ਵਿੱਚ है ना मस्जिद ਵਿੱਚ है। ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਤੂੰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਰ ਬੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੂਸਰਾ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪश्चिम दिशा ਵੱਲ मुंह करके नमाज पढ़ते, सजदा करते। लेकिन आज वो अमृत वेले उठ के पूरब ਨੂੰ सजदा कर रहे हैं। चेलियां ने पूछा क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਖੜਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। प्रतिदिन जुड़ते सत्संग करते। माई भाग भरी इस सत्संग में जान लग गई। उसका मन मोहिया गया। सिक्खी दे मार्ग ते तुर पई।
सतगुरु ਨੂੰ याद करती है, बड़े प्रेम नाल जपती है। ਸਾਰੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਕੁਰਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆ ਜਾਵੋ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ स्वीकार कर लवो। आप ते बड़े कीमती बस्तर पहनते हो, यह है ते खद्दर, लेकिन कबूल कर लवो, मेरा प्रेम कबूल कर लवो। दिन रात बेनती करती है। गुरु हरगोबिंद जी जो 22,000 फौजां नाल सफर करते हैं, अज फौजां लैके उस इलाके विच पहुंच गए। फौजां नूं एक खुले मैदान विच ठहराया। 2-4 सिख नाल लैके एक पिंड वाल तुर गए। एक गली जो बहुत ही पतली है, उत्थे आके खलो गए। एक घोड़े दे पिछे दूसरा सहजे सहजे एक कोठरी दे सामने जाके खड़े हो गए। घोड़े तो उतर पए। छोटी जी कोठरी है, दरवाजा भीड़िया होया है, बाहर छोटा जिहा वरांडा है, उसते अगे एक छोटा जिहा गेट जो हाथ नाल हिलाओ तो खुल जाना है, लेकिन आप उसके बाहर खड़े हो गए। आवाज मारी, माता भाग भरी, असी चोला लैन आए हाँ, साडा चोला दे दो। माता ने आवाज सुनी, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। सोचा मेरा मन भी मेरे नाल मजाक करन लग गया। किहो जिहा आवाज़ां सुनदा है। इतनी दूर सतगुरु, मैं इतनी भागा वाली, किस तरह इन्नी बख्शिश हो सकती है मेरे ते। मैं तो बहुत छोटी गरीब हाँ। गुरु साहब ने फिर आवाज लगाई। उसने फिर आवाज सुनी, हुण ध्यान नाल सुनदी है, बाहरों आंदी है कि मेरे अंदरों ही बोल रही है। जदों कोई उत्तर ना आया ते गुरु साहब दे नाल खड़े सिख ने एक कदम अगे चुकिया कि बूहा खोल दिया। हाथ अगे वधाया, गुरु साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया ते पिछे कर दिता। आखन लगे, दिस इज सेक्रेड ग्राउंड, पूजा स्थान है। गुरु नानक ने सिख ने बड़े प्रेम नाल इसनू सिंचिया है। ध्यान नाल कोई अवज्ञा ना हो जाए।
गुरु नानक ते सिख दा पूजा स्थान है। एक बारी फिर आवाज मारी, माता भाग परी असी चोला लैन आए हाँ। हुण माता नूं यकीन हो गया, गुरु साहब आ गए हन। चाई चाई उठी ते दौड़ के दरवाजा खोलिया। आके चरना ते पै पई। गुरु साहब ने उठाया, अंदर ले गई, बिठाया। आखन लगे, माता साडा चोला। हुण उसदी अखां चों हंझू नहीं रुकदे। दो मलमल दे कपड़ियां विच लपेट के रखिया है, कढ के ले आए ते चरना ते मत्था टेकिया। इतना वड्डा मेरे ते उपकार, इतनी वड्डी बख्शिश सोच रही है। इस तो चंगा भागे भरिया दिन ते मेरे लिए आ ही नहीं सकता। हे प्रभु, तू हुण मैनू चुक लै। सतगुरु हुण उपकार करो, हुण मैं होर नहीं जीना। ते बेहोश हो गई। गुरु साहब जानी जान हन। चुक के गोद विच सिर रखिया। आख्या, माता की चाहते हो? आप जानी जान हो। हुण जन्म मरण कट दियो। हुण इस शरीर तो छुटकारा भी दवा दियो। माई भाग भरी दा संस्कार करके ही सतगुरु उत्थों तुरे। गुरु नानक ने आप ही उसका मन मोहया, आप ही नाम जपन विच लगाया, आप ही अंदर प्रेम पाया, आप ही इस मुकाम ते पहुंचाया ते आप ही आके उसके प्रेम नू कबूल कीता अते तार दिता। ये गुरु दे ही हथ है। एक सरदार साहब नाल भेंट होई। आप आखन लगे, असी घर विच अखंड पाठ रखवाया, भाई जी नू बुलाया। वो कुछ इतराज करन लगे कि थल्ले दे मंजिल ते तुसी प्रकाश कीता है, ऊपर तुहाडे बाथरूम हन। इस तरह तबीयत भी है। आखन लगे, मैं उन्हां नू सत श्री अकाल बुला के आप अरदास करन लई खलो गया। मैं ही जानदा हाँ कि जो मेरे मुंह चों अरदास निकली, वो मैं कभी सोची नहीं सी। गुरु ने आप ही अरदास करवा दिती ते आप ही पूरा भी करवा दिता। गुरु आप ही करांदा है। एक भैन जी मिले, बड़े लायक सन। आखन लगे, 20 साल मैं जन्मी ते सिख घर विच सी, लेकिन इतबार नहीं से आंदा गुरु दे शब्द ते। सो कोई भी मजहब का संत साधु मिल जाए, उसको जाना ते अपने सवाल पूछने ते खोज करनी। 20 साल निकल गए ता एक दिन गुरु नानक के शब्द ते भरोसा बच गया।
मन टिक गया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਨ ਥੋੜਾ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧੂ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਪੀਰ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭੀ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਜ ਲਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਸ ਨਾਮੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਕਾਲਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਬਸਦੇ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਿਊ ਥਾਟ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ
ते मुसलमान विद्वान इकट्ठे बैठ के विचार गोष्ठी भी करते। हर एक दा यही कोशिश हुंदी कि जो विद्यार्थी मेरे कोल पढ़न आन, साडे मदरसे या साडे गुरुकुल विच आन, उन्हां दी पढ़ाई सब तो अव्वल होवे अते साडे जो गुरुकुल है, जो मदरसा है, उसका नाम उच्चा होवे। इस जगह ते गुरु नानक ने ऐलान किया, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, विद्वानां नाल भरिया सी। सारे जो ये सिखा रहे सन कि चंगे मुसलमान, चंगे हिंदू, चंगे प्रभु दे नेड़े पहुंचन वाले किस रस्ते ते चलन। गुरु नानक ने आख्या, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, दोवें ही भड़क गए। दोहां जाके दौलत खान दे दरबार विच शिकायत की। गुरु नानक की आखते हैं, कचहरी विच बुलाया गया। दरबार विच जदों आए ते काजी ने आख्या गुरु नानक नूं, इत्थे रिवाज है, जो आए वो सत सलामा पहला नवाब नूं करे। गुरु नानक ने आख्या, असी उस प्रभु नूं सलाम किया है जिसने सभी नूं बनाया है, उस एक नूं सलाम किया है। उस एक दे अगे ए सिर झुकिया है, हुण किसे होर अगे झुक नहीं सकता। गुरु नानक दा सिख एक नूं मनदा है, एक ते अगे झुकदा है, एक दी पूजा करता है, एक दी आराधना करता है। एक जिस भगत विच वस गया, पूर्ण तौर ते वस गया, उसनूं भी गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब विच जगह दे दित्ती। असी उसनूं मत्था टेकदे हां, एक नूं मत्था टेकदे हां। प्रभु दी बाणी नूं मत्था टेकदे हां, ਜਿਹੜੀ इस भगत गुरु साहबान पट इन्हां सब दे अंदरों उच्चारण हुई प्रभु की बाणी। इस एक नूं मत्था टेकदे हां। एक दिन औरंगजेब अपने दरबार विच बैठा सी ते दो काजियां दी बहस हो गई। रब इत्थे है, रब उत्थे है। वो जानदा सी कि रोजी ये बहसां हुंदियां हन। जो गुरुकुल विच पढ़न जांदे हन, जिहड़ा 3 वेद पढ़ जाए वो त्रिवेदी कहलांदा है, जो 4 वेद पढ़ जाए वो चतुर्वेदी कहलांदा है, जिहड़ा 108 सारे ही ग्रंथ पढ़ जाए वो अपने नाम दे पिछे 108 लिख के अपनी डिग्री दा ऐलान करता है इस दुनिया ते। ते जेड़े मदरसे विच जान और जो नमाज़ां पढ़न
जो इस्लाम दा पूजा करन, जो रोजे रखन, उस हिसाब नाल अपने आप नू प्रभु दे नेड़े समझते हन। भुल गए हन कि मन ने जुड़ना है, शरीर ने सजदा नहीं करना। ਅੱਜ ਜਦੋਂ दो काजी आपस ਵਿੱਚ बहस कर रहे ਹਨ ਤੇ औरंगजेब बोलिया, कुल्हां देंदे बावले लैंदे वडे निलज। कुल्हां देंदे बावले लैंदे वडे निलज। ਜਦੋਂ शाही काजी ने एक कलाम सुनिया ते आखन लगा, बादशाह सलामत, तुसी यह की कीता? तुसी काफिर दा कलाम पढ़ रहे हो। ये ते गुरु नानक दी बाणी है। औरंगजेब आखन लगा, मैं जानता नहीं किसका कलाम है, लेकिन 7 साल मैं इत्थे ही पढ़िया हाँ, सुल्तानपुर लोधी। एशिया तो वड्डे वड्डे लोग इत्थे आए पढ़न नूं, और साडे उस्ताद ने सानू ये सिखाया सी। ये गल बिल्कुल दुरुस्त है। गुरु नानक दी बाणी जो उस्ताद हन, जो विद्वान हन, वो खोज करके अपना रहे हन। इदा अर्थ की है, ओ लोग मूर्ख हन, कमले हन, जो चेलियां नू टोपी दे के अपनी गद्दी सौंप देंदे हन। इसनू सहली टोपी आखते सन। जो पीर अपने आप नू अपने धर्म दा चंगा विद्वान मनन लगे, उस दे कोल पढ़न वाले अनेक आ जाते सन। लेकिन जदों उसका जान दा वेला आवे ते वो अपनी गद्दी एक विद्यार्थी नू सौंप जावे ते तू बावला हो गया है। प्रभु दी रूहानियत है, ये प्रभु दा प्रेम है। तू इसते भी मलकियत कर ली है। तू अपना नाम अगे बढ़ाना चाहना है। तेरा मोह पिया है अपने नाम विच, अपनी गद्दी विच। आप ही मोह तो छुटिया नहीं, तेरे अगे चलन वाले किस तरह छुटनगे। लैन वाले भी निर्लज हन, देन वाले भी बावले हन। कुल्हां देंदे बावले लैंदे वडे निलज। प्रेम कोई डिग्री नहीं जेड़ी तू अपने नाम दे पीछे लगा देगा। प्रेम दी निशानी की है। निशानी ते सदगुरु ही पा सकते हैं, बख्शिश दे के। जदों तेरा प्रेम कबूल करते हैं, बख्शिश दे घर विच आ जाते हैं।
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਵੇ। ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਵੇ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਵੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇसी ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਪਦਾਰਥ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
प्रकाश की किरण भी अंदर नहीं जाती। की हालत हो गई है इस जीव की। हार के इस शरीर जवाब दे जाता है, बीमार हो जाता है। इसकी मन की हालत असी माप लेने हाँ, एक्सपेरिमेंट्स कर करके। फिर इसनो मेडिटेशन सिखाते हाँ, प्रभु नाल प्रेम पाना सिखाते हाँ। सहजे सहजे ये दीवार टूटती जाती है। ये हृदय ज्ञान वाला हो जाता है। इस विच टिकाव आ जाता है, सुख शांति आ जाती है। इस टिकाव में भी असी नाप सकते हाँ। वो नाप नाप के उसकी तस्वीरां दिखाते हैं कि देखो मनुष्य किस तरह बदल गया, किथे संसार नाल जुड़िया सी की हाल सी, हुण प्रभु नाल जुड़िया है की हाल है। देखते ही देखते ये बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। रोज ही करते हैं मैं अनुभव, रोज ही करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। गुरु नानक ने आख्या तू प्रीत पालै गुरु चरना विच, सतगुरु दा शब्द तेरे अंदर वस जावे, प्रभु तेरे अंदर वस जावे, तेरी प्रीत कबूल हो जावे, ता तू सुहागन बन जावे, ता तू सारे ही दुखा सारे ही बंधना तो छुट जावे। होर कोई रास्ता ता है ही नहीं। सतगुरु आप ही तोरते हैं इस रास्ते पे। जो तू चलाए तिर चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। आज आख रही ਹਨ गुरु अमरदास जी आज की पौड़ी विच 15वीं पौड़ी। ज्यों तू चलाए तिर चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिथे तू खड़ा कर दिंदा है, जो तू इस मन तो बुझा देंदा दिलांदा है, जो इस मन नू सुना देंदा है, जो ये मन सुन लेंदा है, जो समझ लेंदा है, वही ये जानदा है। होर तेरे गुण मैं जाना तो किस तरह। ज्यों तू चलाए तिर चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिवे चले, जिन्ना मार्ग पावे, जिन्हां नू मार्ग ते पा देवे, जिस मार्ग ते पा देवे, जिस मार्ग ते बख्शिश कर देवे, वो उत्थे ही चलते हैं। कर कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा ते आवे। बख्शिश कर देवे, ए मन मन जावे तेरे नाम नू, गुरु नानक दी जुक्ति नू। ते ध्यान विच, उसकी याद विच, उसके चरना विच ध्यान जोड़न विच लग जावे। कर कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा त्यावहे। जिसनों कथा सुनाए आपनी,
से गुरुद्वारे सुख पावे, गुरु चरਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸક્ષਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਝੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਹਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਵਨ ਬਨੇਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਵਨ ਬਨੇਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਇਹ ਗੂੜਾ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਰੰਗ, ਕਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਵਨ ਰੰਗ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ, ਰਹਾਓ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮ ਹੈ ਸੁਹਾਗ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਰ ਲਾਲਨ, ਤੁਮ ਘਰ ਭਾਗ। ਲਾਲਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। तुम घर लालन, तुम घर भाग, तू सतवंती, तू प्रधान। सतवंती उच्चे आचरण वाली तो तू ही है। मन्नी परमन्नी प्रधान तो तू ही है। तू सतवंती, तू प्रधान, तू प्रीतम पानी, तू ही सुरज्ञान। तेरे अंदर ही वो श्रेष्ठ ज्ञान उपजया है, प्रभु का ज्ञान, जिहड़ा प्रभु ने तैनू बख्श दिता है। तू प्रीतम नू पा गई है, तू प्रीतम पानी, तू ही सुरज्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाब। हुण जवाब देंदे हैं, आखते हन प्रीतम नू पा गई सी। ये मेरे बस का खेड तो है ही नहीं।
मैनू तो जिथे उसने तोरिया, जिथे उसने बिठाया, जो शब्द उसने सुनाया, जिस सत्संग विच उसने जोड़िया, मैं तो उत्थे ही बैठ गई सी। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल, कौ नानक शुभ दृष्ट निहाल। गुरु नानक आखते हन, उसे ने बख्शिश दी दृष्टि मेरे उत्ते पा दित्ती ते निहाल कर दिता। मेरा मन मोहिया गया। सुनरी सखी ए हमरी काल, सुन सखी मेरी यही काल है, यही मेरी विच जो मेहनत है कि मेहनत की है। प्रभ आप सीगार सवारनहार, रहाव दूजा। कि प्रभु ने आप ही मैनू सिंगारिया है, आप ही मैनू सवारिया है, आप ही मैनू तोरिया है और आप ही मैनू तार दिता है। ये ते सब बख्शिश ही है प्रभु दी। लाल चोलना तैतन सोया, सुरजन पानी तामन मोया। कवन बनी री तेरी लाली, कवन रंग तू पई गुलाली। सुन री सखी ए हमरी काल, प्रभ आप सीगार सवारनहार। सुनते हाँ शब्द। सुन री सखी ए हमरी काल, प्रभु आप सिगार सवारण हार। प्रभु आप सिगार सवारण हार। लाल चोलना तैतन सोहेया, लाल चोलना तैतन सोहेया। सुरजन पानी तामन मोहिया। सुरजन पानी तामन मोहिया, तामन मोहिया। लाल चोलना तैतन सुहेया, लाल चोलना तैतन सुहेया। कवन बनीरी तेरी लाली, कवन बनीरी तेरी लाली। कवन रंग तू पई गुलाली,
गुलाली बही गुलाली बही गुलाली सुरजन पानी दामन मोहिया सुरजन पानी दामन मोहिया दामन मोहिया लाल चोलना तन सोहेया लाल चोलना तन सोहेया तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर बाग तुम कर लालन तुम कर पाग तुम कर पाग तुम कर पाग सुरजन पानी दामन मोहिया सुरजन पानी दामन मोहिया दामन मोहिया लाल चोलना तन सोहेया लाल चोलना तन सोहेया तो सतवंती तू परधान तो सतवंती तू परधान तू प्रीतम पानी तू सुर ज्ञान तू प्रीतम पानी तू सुर ज्ञान तू सुर ज्ञान तू सुर ज्ञान सुरजन पानी दामन मोहिया सुरजन पानी दामन मोहिया दामन मोहिया लाल चोलना तन सोहेया लाल चोलना तन सोहेया प्रीतम
गुलाल प्रीतम पानी तरंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल को नानक शुभ दृष्ट निहाल दृष्ट निहाल सुरजन पानी तामन मोहिया सुरजन पानी तामन मोहिया तामन मोहिया लाल चोलना तन सोहिया लाल चोलना तन सोहिया सुनरी सखी ए हमारी काल सुनरी सखी ए हमारी काल प्रभु आप सिगार सवारण हार प्रभु आप सिगार सवारण हार सवारण हार सुरजन पानी तामन मोहिया सुरजन पानी तामन मोहिया तामन मोहिया लाल चोलना तन सोहिया लाल चोलना तन सोहिया सुरजन पानी तामन मोहिया सुरजन पानी तामन मोहिया तामन मोहिया तामन मोहिया तामन मोहे मोहिया तामन मोहिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।